Hello dear students. Last time we have started with the topic similarity. Geometry का first topic we have started. In that video I taught you all the properties related to the ratios of the areas of two triangles. Student, that property is very important because on the basis of that property which I taught you in the first video, today we are going to solve the problems in practice set 1.1. So let's start with the practice set 1.1 of similarity. What is given? First problem. Look here everyone. Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of the another triangle is 10 and height is 6. Student, look here very carefully. See, there are two triangles here. Base height is given of the first triangle. Base and height of the second triangle is also given. So we are going to use first property to solve this problem. First write it down. Let A1, B1 and H1 be the area, base and height of the first triangle respectively. See what I have taken over here. A1 be the area of the first triangle, B1 is base, H1 is height of the first triangle. See student, base of a triangle is 9, therefore B1 is equal to 9 and H1 is equal to 5. It is given. Now let A2, B2 and H2 be the area, base and height of the second triangle respectively. With the second triangle respectively. Student, see, base of the another triangle is 10. So B2 is 10 and H2 is 6. Base, height, first triangle, second triangle. So what we need to find? We need to find the ratio of areas of two triangles. Ratio, किसका ratio? Areas of two triangles. So we need to find A1 upon A2. Then the ratios of the areas of two triangles according to the first property is B1 into H1 upon B2 into H2. Do you remember the first property? What was the first property which I taught you in the last video? The ratio of the areas of two triangle, is equal to the ratio of the product of the bases and corresponding height. Student, यहाँ पे मैंने वही प्रॉपर्टी यूज की है, तो इधर आपको रीजन लिखना है. Areas of two triangles the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the product of the bases and its corresponding height. Student, first property. चलो. Therefore, A1 upon A2 is equal to, what is B1? 9. What is H1? 5. What is B2? 10. What is B2? 10. What is H2? 6. Therefore, A1 upon A2 is equal to, chalo let's cancel it out. 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा 9, तो 3 upon 4. So A1 is to A2 is equal to 3 is to 4. The ratio of the areas of two triangle is 3 is to 4. Student, now see the second question. In figure 1.13, this is figure 1.13. BC is perpendicular to AB. Look here, BC. This is BC is perpendicular to AB. AD is perpendicular to AB. AD is perpendicular to AB. BC is given 4,
and AD is given 9. Then find area of triangle ABC. Look at the triangle carefully. Area of triangle ABC. This is the triangle. And area of triangle ADB. Again we need to find the ratio of the areas of two triangle. दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है. स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. In the diagram, look very carefully base and height of the triangle. Now, पहला ट्राइंगल क्या है? ABC. ABC. What is the base? AB. What is the height? BC. In second triangle ADB. ADB. What is the base? AB and height AD. Now, look here. Student, in the first triangle, base was AB and height was BC, and in the second triangle again the base was AB and height is AD. तो AB same हुआ कि नहीं हुआ? Means both the triangle have equal base. Both the triangle have equal base. और जब base जब equal होता है तो रेशियो किससे इक्वल होता है? किससे इक्वल होता है? रेशियो ऑफ इट्स हाइट. तो देखो इसका बेस इक्वल है, तो लुक हियर एवरीवन. एरिया ऑफ triangle ABC and triangle ADB have common base AB. चलो ये common base AB, therefore bases are equal. Therefore the bases are equal. दोनों को common base AB है तो basis equal हो गया. Therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADB is equal to area of triangle ABC upon ADB. स्टूडेंट इस ट्राइंगल क्या इक्वल है? बेस इक्वल है. दोनों ट्राइंगल का क्या इक्वल है? बेस इक्वल है. तो रेशियो किससे इक्वल होगा? हाइट से होगा. तो फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट क्या है? BC और इधर हाइट क्या है? AD. तो इट इज BC अपॉन AD. रीजन क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ द areas of two triangle is equal to the ratio of the area of two triangle with equal bases is equal to the ratio of its corresponding height is equal to the ratio of its corresponding. स्टूडेंट्स प्रॉब्लम एकदम सिंपल है. आपको ध्यान क्या रखना है? जब भी आपको रेशियो पूछा, किसका रेशियो पूछेगा? एरियाज ऑफ ए टू ट्राइंगल का. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. उसमें हाइट और बेस देखो. जैसे हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें बेस हाइट दोनों ट्राइंगल का दिया था, तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की. ठीक है. इधर मैंने ऑब्जर्व किया कि बेस हाइट, तो बेस कॉमन है. बेस कॉमन मींस बेसेस आर इक्वल हो गया. बेसेस इक्वल हो गया तो रेशियो किससे इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग हाइट से इक्वल होगा. आपको ये चीज ध्यान रखनी है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ BC? BC कितना है? 4 और AD कितना है? 9. कैंसिल होता है? नहीं होता है. तो दिस इज योर आंसर. See the third one. Now see the third problem, student. In the adjoining figure, PS is perpendicular to RQ. PS is perpendicular to RQ. Segment QT is perpendicular to PR. QT perpendicular to PR. See student, look here. PS is perpendicular to RQ में अगर देखोगे PS perpendicular to RQ, तो स्टूडेंट अगर ये देखोगे, इसको मैं अगर हाइट कंसीडर करता हूँ, इसको मैं बेस कंसीडर करता हूँ, तो ट्राइंगल कौन सा होता है? PQR. If I take triangle PQR, तो ये ट्राइंगल PQR का ये बेस हो जाएगा. PQR का ये पार्ट जो होगा ना स्टूडेंट, बेस हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट, हाइट हो जाएगा. सिमिलरली देखो इधर QT इज परपेंडिकुलर टू PR. अब ये देखो QT परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट ये बेस हो जाएगा. जहां पे भी परपेंडिकुलर जाके गिरता है तो वो चीज हमारी बेस बन जाती है. तो QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो PR मेरा बेस बन गया और हाइट बन गया मेरा QT. बट अगेन द ट्राइंगल इज सेम. अगेन ट्राइंगल PQR.
अगर मैं QT हाइट लेता हूं तो बेस क्या बनेगा PR, अगर मैं PS हाइट लेता हूं तो बेस क्या बनेगा RQ। तो स्टूडेंट इधर ध्यान देना, इधर सेम ट्राइंगल का बेस और हाइट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लुक हियर, look here everyone, in triangle PQR, when PS is height and RQ is base, again in triangle PQR, when QT is height and PR is base। तो दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो ले लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, बिकॉज दोनों ट्राइंगल सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, बट दोनों का बेस एंड हाइट बोथ आर डिफरेंट, तो वी गोइंग टू यूज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये वाला अगर यूज करता हूं तो PS इंटू RQ, तो इधर ऊपर क्या आ जाएगा PS इंटू RQ, और इधर नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट QT अपॉन PR, AQ2 इंटू PR। स्टूडेंट बोलो रीजन क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ द areas of two triangle is equal to the ratio of the product of the bases and its corresponding height। Look here, now student look here, just put the values, देखो ये कट हो जाता है तो इधर क्या बच गया 1, PS का वैल्यू कितना है 6, RQ का वैल्यू कितना है 6, QT तो फाइंड करना है, PR का वैल्यू कितना है 12, ओके। तो 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो स्टूडेंट व्हाट इज रिमेनिंग 3 अपॉन QT, 3 अपॉन QT, तो QT into 1 is QT is equal to 3, तो QT का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 3। Let's see the fourth problem student, in the adjoining figure AP is perpendicular to BC, see this, AP is perpendicular to BC, as I told you before कि जब भी जहाँ पे परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस बन जाता है, इट इज ट्राइंगल ABC में अगर हाइट AP है तो बेस क्या है BC है, ठीक है, एंड AD is parallel to BC, look here this line AD is parallel to BC। student before solving this problem let me remind you the properties which I taught you in the last video। student आपको याद है कि मैंने आपको ये बोला था when the triangles lie between the parallel lines, याद है when the triangles lie between the parallel lines, ट्राइंगल जब पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं तो उनकी हाइट इक्वल होती है। तो स्टूडेंट लुक हियर, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ABC एंड ट्राइंगल DBC बोथ लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस, मींस ये दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल होगी बिकॉज़ बोथ आर लाइंग बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस। तो एक चीज तो याद रखना, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्राइंगल ABC, बेस क्या हो गया BC, पहले वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है AP, तो इसका भी हाइट AP होगा। स्टूडेंट मैंने पहले ही बोला हाइट्स आर इक्वल, तो इसका भी बेस क्या होगा BC। तो हियर इन दिस क्वेश्चन हाइट एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। स्टूडेंट हाइट इक्वल क्यों है, बिकॉज दे आर लाइंग बिटवीन द पैरेलल लाइन। हाइट इक्वल क्यों है, बिकॉज दे आर लाइंग बिटवीन द पैरेलल लाइन, और दोनों का बेसिस क्या है कॉमन है। देखो BC ABC, तो बेस क्या है BC, DBC तो बेस क्या है BC, तो बेस भी कॉमन हो गया। हाइट एंड बेस बोथ आर इक्वल, कोई भी ट्राइंगल्स का हाइट एंड बेस अगर इक्वल होता है देन द रेशियो इज इक्वल टू 1/1। तो लेट्स राइट इट डाउन, ट्राइंगल ABC
and triangle BCD lie between two parallel line AD and BC. AD and BC. Triangle ABC and BC lie between the two parallel line AD and BC, because it is given as student AD is parallel to BC and they also have common base BC. They also have common base BC. Therefore, I can say that both the triangles have equal height and equal bases. Student, triangle, both the triangle lie between the parallel line AD and BC and also they have common base BC. Therefore, therefore both the triangles have equal height and equal base. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to 1/1. कभी भी याद रखना, आपको याद ये रखना है, कोई भी ट्रायंगल का हाइट और बेस दोनों इक्वल है, दोनों ट्रायंगल का, तो उनका रेशियो हमेशा इक्वल होता है 1/1 से। तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1। इधर क्या रीजन लिखोगे? ट्रायंगल विद इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस। ट्रायंगल विद इक्वल हाइट एंड इक्वल बेसिस। Triangle with equal height and equal bases. Therefore, area of triangle ABC is to area of triangle BCD is 1:1. Start. Now see the last problem of practice set 1.1 student. Student, this 4 problem is homework for you. But मैं आपसे ये पूरा डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है? Let's discuss it. देखो, see the first, पहले see the question. In the adjoining figure, PQ is perpendicular to BC. PQ, this is PQ, is perpendicular to BC. Next, AD is perpendicular to BC. AD again, AD is perpendicular to BC. ये दो चीज अपने को दी हुई है. See here. अगेन स्टूडेंट, ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में रेशियो, किसका रेशियो है? दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो है। मैंने पहले भी आपको बताया कि दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो आएगा तो वो दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट आपको देखना है डायग्राम में। लेट्स सी द ट्राइंगल फर्स्ट वन, ट्राइंगल PQB। लुक हियर, P, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, होमवर्क करना आपको। PQB, स्टूडेंट लुक हियर, PQB, ये ट्राइंगल है। अब यहां पे देखो, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर यहां पे, तो बेस क्या होगा? हाइट हो गया PQ एंड बेस हो गया PQ, फर्स्ट ट्राइंगल का। सेकंड देखना PBC, PBC। अब ये PBC ऑब्जर्व करना, अगेन क्या है? परपेंडिकुलर है ये। सो दूसरे ट्राइंगल का हाइट क्या हो गया? PQ। और बोलो मेरे को बेस क्या होगा? PBC में बेस क्या होगा? BC। नाउ स्टूडेंट देखो, हाइट PQ, हाइट PQ, हाइट इक्वल होगी क्या? बेस क्या है? BQ एंड बेस क्या है? BC। पहले वाले ट्राइंगल का PQB का बेस क्या है? BQ। PBC का बेस क्या है? BC। बोथ बेसिस आर डिफरेंट बट हाइट्स आर इक्वल। तो रेशियो किससे इक्वल होगा? जब भी हाइट इक्वल होती है तो रेशियो किससे इक्वल होगा? तो फर्स्ट वाले का आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों ट्राइंगल की हाइट इक्वल है तो रेशियो होगा बेसिस का BQ अपॉन BC। तो इसका आंसर आ जाएगा BQ अपॉन BC। आपको सिस्टमेटिक पूरा ये लिखना है फर्स्ट वन। नाउ सी द सेकंड वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। ऑब्जर्व द ट्राइंगल PBC, PBC, हाइट PQ, बेस BC। दूसरा ट्राइंगल ABC, हाइट AD एंड बेस BC। नाउ लुक हियर, ये दोनों ट्राइंगल का, इसका और इसका बेस देखो क्या है? BC। बेस क्या है? BC। तो बेसिस आर इक्वल। तो इसका बेसिस जब इक्वल होता है तो रेशियो किससे इक्वल होता है? करस्पॉन्डिंग
हाइट का रेशियो आता है, तो PQ अपॉन AD, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट PQ अपॉन AD। अंडरस्टूड? सेकेंड वन, जैसे मैंने सिखाया था पूरा सिस्टमेटिक आपको लिखना है विद प्रॉपर रीजन, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करते समय। नेक्स्ट ट्राइंगल ABC, ABC, व्हाट इज हाइट इन ABC? ABC हाइट क्या है? AD। व्हाट इज बेस? BC। ADC, ADC हाइट क्या है स्टूडेंट? हाइट इज AD, बेस क्या है? DC। Yes, again in these two triangle heights are same. Look here, first triangle ABC height is AD, second triangle ADC height is AD, both have equal height, तो रेशियो किससे इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग बेसिस, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस, तो BC अपॉन DC, तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा BC अपॉन DC। आपको ये होमवर्क करना है। नाउ सी द लास्ट वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। Look here, look at the diagram carefully. ADC, height is AD, base is DC। height क्या हो गया? AD, base क्या हो गया? DC। next is PQC, 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 height क्या हो गया? PQ, base क्या हो गया? QC। height AD, height PQ, both are different, बेस DC, बेस QC, both are different, तो स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AD इंटू DC अपॉन PQ इंटू QC। कौन सा प्रॉपर्टी है? फर्स्ट वन वाला, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर ये चारों प्रॉब्लम आपने प्रॉपर्ली कर लिया, इट मींस यू अंडरस्टूड each and every properties and you understood the concept very well student। any doubt, कुछ भी डाउट्स हो आप मेरे को बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट थैंक यू सो मच।